Hi everyone, my name is Vaibhav and I welcome you all to our channel How Legally, where we will discuss the latest legal topics around the country. And soon we are coming up with a very informative and interesting legal series where you will get to know how legally the things are going on in the society. So till then, stay tuned and please don't forget to subscribe the channel. So, Abhi, recently, you guys might have seen on various news channels that the doctors are protesting in Rajasthan against the Rajasthan government. एंड मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि ये सिर्फ राजस्थान के डॉक्टर्स ही क्यों सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं. So, let me tell you one thing that Rajasthan become the first state in the country who passed the bill in the state assembly and came up with the Rajasthan Right to Health Act 2023. एंड इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि ये राजस्थान राइट टू एक्ट 2023 क्या है एंड व्हाई दीज डॉक्टर्स आर प्रोटेस्टिंग. ये वीडियो लीगल पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. सो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो. So what we will discuss in this video, first of all we will discuss what is Rajasthan Right to Health Act 2023 and what are the benefits, rights granted to people under this act. क्या rights grant किए गए हैं लोगों को इस act के अंदर. Third, why the doctors are protesting against this act. And the last one, the way forward possible solutions. कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं इफ दिस एक्ट इज चैलेंज इन द कोर्ट. एंड अगर जो स्टेट है वो कुछ अमेंडमेंट लाती है तो क्या पॉसिबल सॉल्यूशन इसके अंदर हो सकते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, राजस्थान राइट टू हेल्थ एक्ट 2023. After the enactment on 2nd March 2023, Rajasthan became the first state in the country to pass the Right to Health Act. So the date of enactment as per the exam point of view is very very important. This is 2nd March 2023. And जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि राजस्थान become the first state in the country to pass this right to health act. अच्छा, यहाँ पर कुछ important aspect है कि ये right to health जिसकी हम बात कर रहे हैं क्या ये constitutional right है. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, is it a state duty? Is it a state duty, responsibility, or I will say obligation to provide each resident proper health care? And the last one, क्या स्टेट ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे किसी प्राइवेट प्लेयर, हॉस्पिटल या हेल्थ प्रोफेशनल पर डाल सकता है कि मैं तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, यू हैव टू प्रोवाइड द फ्री सर्विसेज, वो भी इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बिना कंपनसेट किए. तो ये तीनों क्वेश्चंस मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड आफ्टर दिस आई विल अपलोड अ स्मॉल वीडियो ऑन दीज थ्री क्वेश्चंस. नाउ जो ये एक्ट है वो क्या कहता है कि दिस एक्ट विल प्रोवाइड फ्री ओपीडी एंड आईपीडी फैसिलिटीज, फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन to resident of Rajasthan, both at private as well as government hospital. As I already told you, private को भी इसका पार्ट बनाया गया है. स्टेट प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट प्रोफेशनल्स पर भी ये ऑब्लिगेशन, ये ड्यूटी डाल रहा है एज पर दिस न्यू एक्ट. द एक्ट प्रोवाइड्स राइट टू patient to take treatment summary from hospital even if patient leave against the medical advice. So ये क्या कह रहा है, द पेशेंट के पास राइट है दैट कि वो एक समरी जो जिस चीज के लिए वो आया है वो मेडिकल एडवाइस ले या ना ले, लेकिन वो ट्रीटमेंट समरी ले सकता है फ्रॉम द हॉस्पिटल. एंड द लास्ट, प्रोवाइड एक्ट प्रोवाइड राइट टू फैमिली मेंबर्स टू कलेक्ट द डेड बॉडी ऑफ द डिसीज्ड पेशेंट.
So these are some important sections of the act which are relevant for your knowledge and exam point of view. Section 2 of the act, which says resident person who is a bona fide resident of the state or is currently residing in the state, या तो वो currently reside कर रहा हो state में, या who is a bona fide resident from the very beginning of the state, तो वो person. Then section 3, which is very important, which contains 13 rights given to the resident of the Rajasthan, resident as defined here in above. And section 3 talks about 13 different rights, which includes, like we have discussed, availing free OPDs, IPDs, facilities, and to have emergency treatment, free healthcare services, to know the detail of the medical professional who is going to treat the patient, and the patient to have all the access to its records. So these are the 13 different rights which are given to the resident of the Rajasthan. Then section 12, power of the district and state health authority. The state health authority can supervise the hospital, the facilities, that facilities क्या वो सही तरीके से facilities provide करवाई जा रही है resident को या नहीं करवाई जा रही. तो state authorities and district authorities has that power. Then section 13, what is the complaint mechanism, कि अगर किसी रेजिडेंट को ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करवाई जाती या कोई किसी के साथ भेदभाव होता है इन प्रोवाइडिंग दीज फैसिलिटीज, सो उस केस में अगर उसका राइट वोलेट हो रहा है तो क्या वो कंप्लेंट मैकेनिज्म है जो वो फॉलो करेगा, जो वो एक कंप्लेंट फाइल करेगा. सो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 13. एंड सेक्शन 14, क्या पेनल्टीज हैं. अब कंप्लेंट वो फाइल करेगा तो कुछ पेनल्टीज भी उनमें दैट प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे लगेगी. सो दैट सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट पेनल्टीज in case of contraventions of the provision of this act. Then section 15, appeal to the state. This section talks about the appeal if in case district authority के पास अगर वो जाता है इस complaint mechanism में and district authority जो है उसकी complaint को properly take up नहीं करती, in that case he can file a appeal to the state health authority. Then section 16 talks about the jurisdiction of the civil court. The civil court is having the jurisdiction in this case. And the last section 18, which talks about the relationship of this act with other healthcare acts. और भी राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट में और भी बहुत सारे ओल्ड हेल्थकेयर एक्ट्स हैं which are implemented, which are passed earlier. So उसके साथ इस एक्ट का क्या रिलेशन है, this section 18 talks about that. So these are the few important sections. And one of the main question that was raised in the beginning of this lecture, why the doctors are protesting against the act. The doctors claim that the act ignores advice from the medical professionals, is ill prepared and fails to take into the account of practical realities of the system. So it says कि जो डॉक्टर्स, जो एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स है, जब ये एक्ट जो है फॉर्म हो रहा है, इस डिस्कशन हो रही थी इस एक्ट के अंदर, तो उस केस में डॉक्टर्स की जो एडवाइसेस एसोसिएशन है उनको उनसे नहीं पूछा गया, उनको टोटली इग्नोर किया गया. एंड इट्स अ इल प्रिपेयर्ड एंड फेल एज पर देयर पर्सपेक्टिव. ये प्रैक्टिकल रियलिटी से थोड़ा सा अलग है. द एक्ट ओवर रेगुलेट्स द मेडिकल इंडस्ट्री एज देयर आर ऑलरेडी मेनी अदर बिल्स दैट प्रोवाइड फैसिलिटीज फ्री मेडिकल सर्विसेज. ये कहना चाह रहा है कि ऑलरेडी बहुत सारे बिल्स जो हैं इसके अंदर ऑलरेडी स्टेट ने टाइम टू टाइम जो है इम्प्लीमेंट किए हैं, पास किए हैं. तो इस एक्ट को जो है मेडिकल इंडस्ट्री को जो ओवर रेगुलेट कर रहा है, ये एक्ट जो है प्रॉपर नहीं है. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस पे प्राइवेट जो अगेन एंड अगेन प्राइवेट प्रोफेशनल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे बर्डन एक क्रिएट किया गया. ये नेक्स्ट उसमें आ भी रहा है. द एक्ट इम्प्लीमेंटेशन इज अ इम्प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ द हेल्थ केयर एंड पोटेंशियल बर्डन ऑन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी एक पार्ट बनाया गया. बीइंग अ स्टेट responsibility, private hospitals are also taken under the umbrella. Then providing healthcare is a government duty, as already told you, and by this act the state is shifting its responsibility to the private hospitals. एक चीज और हमें इसमें ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि राजस्थान में इलेक्शंस भी हैं इस साल,
एंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इलेक्शंस आर आल्सो देयर, एंड यूजुअली इलेक्शंस के टाइम पे भी ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ एक्ट्स जो हैं फॉर द पब्लिक डोमेन में एक चीज को लाने के लिए भी गवर्नमेंट्स करती है, बट डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये इलेक्शन की वजह से हुआ या नहीं हुआ। जस्ट फॉर टेलिंग यू कि इलेक्शंस भी हैं इस साल, सो ऐसी चीजें होती है। सो नाउ क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते थे या अब किए जा सकते हैं? The Rajasthan government have to effectively implement the health scheme which are already in play. ऑलरेडी काफ़ी सारी स्कीम्स राजस्थान गवर्नमेंट में, राजस्थान स्टेट में जो पास हुई है, बट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उनका। सो अब इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो इन मेडिकल और हेल्थ स्कीम का, एंड जो स्कीम है लाइक चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, इन सब का इन सब का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, सो दैट जो अब एक एक्ट है उसके अंदर इसकी एक रेलेवेंस बढ़े। Then there is a lack of clarity over the definition of word emergency which needs to be addressed. ये जो emergency word है इसके अंदर कोई clarity नहीं है, कोई define नहीं किया गया है। अब emergency किसी भी तरीके की हो सकती है। एक्ट में लिखा है in case of emergency free services will be availed। अब emergency छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है इमरजेंसी को लेके। सो उस इमरजेंसी को भी प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, उसको डिफाइन किया जाए कि किन केसेस में आपको फ्री मेडिकल जो है सर्विसेज मिलेंगी। देन एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग एंड डिस्कशंस विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द मेडिकल सेक्टर टू एड्रेस प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स ग्रीवियंसेस। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर एसोसिएशंस हैं या मेडिकल एसोसिएशंस हैं, वो सभी इन डॉक्टर्स की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको टेकअप करें, प्रॉपर डिस्कशन। जो चीज़ पहले होनी चाहिए थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिल, जब बिल पास हो रहा था उस टाइम नहीं हुई, बट अब इनकी ग्रीवियंसेस को सुना जाए, प्रॉपरली इसको केटर किया जाए, एंड जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स हैं जो हमें लगती हैं कि होनी चाहिए वो की जाए आफ्टर दिस मीटिंग्स एंड डिस्कशंस। सो दिस वाज द ओवरऑल व्यू of this Rajasthan Health Act. So thank you very much. And if you want to see more such content, latest legal videos or these hot topics, so please don't forget to subscribe the channel. Thank you.